Welcome dear students to our fifth lecture on graph. So today we are going to discuss about some special graphs of algebraic functions like x cube or 1 upon x and 1 upon x square. So these are three types of algebraic functions which are going to be discussed in this lecture and तीनों के ग्राफ में एज यूजुअल जैसे हमने पहले देखा है लीनियर ग्राफ्स हमने पहले देखे, लाइन ड्रॉ किया और उसके बाद में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ बहुत डीप में जा करके देखे थे कि कितने टाइप्स के हो सकते हैं, क्या क्या उनकी वैल्यूज होंगी. सो इसी कॉन्टिन्यूएशन में हमें आज एक तीसरा ग्राफ हम पढ़ेंगे दैट इज अवर एक्स क्यूब. ओके, सो आई एम नॉट राइटिंग द होल इक्वेशन ऑफ cubic equation here. So cubic equation will take the same things like this graph. The graph will shift on some axis and there will be three roots. Okay. So according to the cubic equation is there, we will discuss it later. But right now I am going to tell you the graph of only x cube. Written like this. Suppose y is equal to x cube. So the values of this graph will become like what? If the values are less than 1, okay, so if the values are less than 1 and less than minus 1, okay, so first of all we will discuss between 1 and minus 1. So the graph will take up the values less than 1. Suppose 1 upon 4 is there, 1 upon 2 is there, so after cubing it will become 1 upon 8. Okay, so if x is equal to 1 upon 2, then y is equal to is 1 upon 8. Okay, so this is decreasing basically. The value of x, if the value of x is between 1 and minus 1, it is decreasing very rapidly. So what will we do? We will take up this graph for this loop, okay, like this. And if it is minus 2, if x is equal to minus 1 by 2, then it will become y is equal to minus 1 by 8. Okay, so it will go in negative domain with the same slope, with the same manner. It will go in like this. So at minus 1, this is equal to minus 1. Okay, at 1, it will be equal to 1. Okay, so this is the primary graph. Then after 1, what will happen? Where suppose we will write like 2 will give 8. Okay, so value is increasing very rapidly. So we will take up this graph like this. It will not go back, it will be like this. So the slope of graph will be very high. Okay, so this is 2 and this goes to 8. And here again the graph will be like this. Okay, so graph is mirror image along the x-axis as well as the y-axis. You can just see this graph, it will become like this. So discussing about the domain and range of it. So domain of this, the value of x will be the element of real number minus infinite to plus infinite, and y will also be the value of a real number. Okay, so there is no restriction of values. ऐसा कोई भी वैल्यू यहाँ पे है नहीं जो x की जो वैल्यू हम ले नहीं सकते, और ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है y की जो इसमें आएगी नहीं, जो लाई नहीं करेगी. ठीक है, तो डोमेन इसका रियल नंबर्स हो गया माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, और इसका जो रेंज है वो भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो गया. ठीक है, अब इसमें कुछ ऑपरेशंस हैं, कैसे हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, उन ऑपरेशंस को हम अभी लेटर ऑन लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे, वो जनरल ऑपरेशंस कैसे कैसे होते हैं. ओके, सो जस्ट फॉलो दिस. सो सेकेंड ग्राफ इज ऑफ अवर 1 upon x. So 1 upon x, there are some restrictions. If we write 1 upon x, then there is a restriction which says that x should not be equal to 0. Okay, so and any other restriction, if this is not equal to 0, then y will never become infinity. That's okay. Okay, and x
and the range will be like this, that y will never become 0 because x infinite is not in the domain. So it will take very low values, बहुत छोटे छोटे वैल्यूज ले सकता है, लेकिन पॉइंट यही है कि ये कभी भी 0 नहीं होगा. तो हम किस तरीके से इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, इस तरीके से. ठीक है. सो यदि प्लस में है, यदि प्लस में होगा तो हम वही अपना सेम मार्केशन पहले देखते हैं कि 1 पे ये क्या देगा, 1 पे इसकी वैल्यू 1 होगी. ठीक है. एंड बियॉन्ड 1 व्हाट विल हैपन, बियॉन्ड 1 सपोज वी विल राइट 2. ओके, इफ वी विल राइट x इक्वल टू 2, इफ x इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 1/2. ओके, सो व्हाट विल हैपन, द वैल्यू इज डिक्रीजिंग. इसके बाद 1 के बाद क्या हो रहा है कि वैल्यू इसकी डिक्रीज करती चली जा रही है धीमे धीमे. तो और बड़ा रैपिडली भी डिक्रीज करेगी. इसके बाद में यदि 2 होगा, ठीक है, तो 1/2 होगी. 1/4 होगा तो 1/4 हो जाएगी. ठीक है. तो बड़ी ये डिक्रीज करता जा रहा है. तो इस तरीके से हम इस ग्राफ को बनाते चले जाते हैं. ठीक है. सो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एसिम्पटोट. एसिम्पटोट, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे इनफाइनाइट पे जाकर के मिलेगा. ये 0 कब होगा भाई, y की वैल्यू 0 कब आएगी, जब ये इनफाइनाइट होगा. तो ऐसा तो है नहीं, बहुत लार्ज नंबर पे कभी भी 0 तो आएगा ही नहीं. आप कुछ भी वैल्यू रखो, इनफाइनाइट से हमारा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बहुत लार्ज नंबर. ठीक है, बहुत बड़ा नंबर. तो बहुत बड़ा नंबर कुछ भी हो, वट एवर इट इज, आपने सपोज 1000 रखोगे, ठीक है, तो 1/1000 आ जाएगा, बहुत छोटी सी वैल्यू आ जाएगी. 1/1 लाख रखा आपने तो भी बहुत छोटी सी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी. लेकिन वैल्यू आएगी जरूर. बहुत मिनिमलिस्टिक वैल्यूज हो जाएंगी, 1 से बहुत छोटी वैल्यूज हो जाएंगी, लेकिन वैल्यू मिलेगी जरूर. ठीक है. तो ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा. सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड एसिम्पटोट्स. ठीक है. और इसके आगे जब हम 1 से छोटी वैल्यू कुछ रख रहे होंगे, सपोज हमने x की वैल्यू रखी 1/2. ठीक है. तो 1/2 यदि यहाँ पे रखेंगे तो क्या लेगा, ये 2 वैल्यू ले लेगा. तो बहुत लार्ज वैल्यू इसको लेगा. तो यहां पे ये इस तरीके से इधर टच करने लगेगा. ठीक है. मैं इसको बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूं कि इस ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करते हैं. इसके बहुत सारे तरीके हैं भाई. डिफरेंशिएशन के थ्रू हम इसको ड्रॉ करेंगे, कहां पे डिसकंटिन्यूटीज हैं वो निकालेंगे, एसिम्पटोट्स की वैल्यूज निकालते हैं. बहुत सारा एनालिसिस है जो हम डिफरेंशियल एनालिसिस में करते हैं इसमें. बट प्राइमरली मैं अभी अलजेब्रा की बात कर रहा हूं, तो आपको सिर्फ ग्राफ को ड्रॉ करना आना चाहिए. ठीक. ग्राफ को दिखा रहा हूं मैं आपको, आप किस तरीके से अप्रोक्सीमेशन करके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो. ठीक. चलो, इसके बाद अगेन वही -1 में क्या होगा, ये -1 वैल्यू लेगा. यदि x में -1 है तो y में -1 ही लेगा. ठीक है. तो ये एक वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेगी. अगेन इट विल हैपन कि भाई 1 से छोटी वैल्यू यदि है, ठीक है, सॉरी -1 से बड़ी वैल्यू है, -1 से छोटी वैल्यू यदि कोई भी ले रहा है, -2, -3, -4 कोई भी लेगा, तो ये वैल्यू हमेशा हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी. तो ये ऐसे हो गया. और -1 से बड़ी वैल्यू होगी तो ये हमेशा बड़ी होती चली जाएगी. ठीक है. तो आप देख रहे हो इसमें सारे पॉइंट्स कैसे मिल रहे हैं हमको, ये सारे पॉइंट्स हमें एसिम्पटोट्स मिल रहे हैं इसमें. तो y की वैल्यू यहाँ पे भी एक एसिम्पटोट है, ये भी एक एसिम्पटोट है, ये भी एसिम्पटोट है और ये भी एसिम्पटोट है. ठीक है. इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है. यदि हम आपसे ये बोले कि भाई सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस की बात करें, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ रहे होंगे, ये सारी चीजें के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इस ग्राफ के थ्रू. ठीक है. यदि कोई चीज 1/x के इक्वल दिया हुआ है आपको, तो आप उसको कैसे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ आपसे पूछता है, तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे, है ना. जैसे आपको एक इक्वेशन, सपोज चलिए मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूं. यहाँ पर एग्जांपल है, सपोज log x इज इक्वल टू 1/x. ये आपको कोई एक इक्वेशन दी हुई है, log बेस 10 है और x इज इक्वल टू 1/x. ऐसे कुछ एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में आपसे पूछा कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे. ठीक है. तो अभी आपने log x नहीं पढ़ा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. log x हम लोग फर्दर लेक्चर्स में ग्राफ में ही देखेंगे कैसे ड्रॉ होता है. सो मीन टाइम मैं बता देता हूं इस ग्राफ को कि कैसे हम ग्राफ का बेनिफिट कैसे उठाते हैं. तो log को यदि हम ड्रॉ करेंगे तो log को जिस तरीके से ड्रॉ होगा, जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूं, log ऐसे ड्रॉ होगा. ठीक है. अब आपको पता है कि ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज द सॉल्यूशन. ओके. सो ये इसको बस एक पॉइंट पे कट करेगा, तो इसका सिंगल एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का. ठीक है.
अब इसमें क्या करते हैं कि भाई आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है वो ऐसे दे दिया जाए, इफ एक्स इज ओनली ग्रेटर देन 0, यदि आपको दे दिया जाए एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आपको दी हुई है, ठीक है। या फिर आपको दूसरा दिया हुआ है कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, सपोज ऐसे दे दिया जाए कि एक्स की वैल्यू सिर्फ 5 से बड़ी हो सकती है, ठीक है, 5 से छोटी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो व्हाट विल हैपन कि भाई ये 5 से ज्यादा वैल्यू, ये ग्राफ जो बनेगा ये यहीं पे बनेगा, 5 से आगे बनेगा, ये ग्राफ बनेगा ही नहीं, इतना ग्राफ जो होगा ये होगा ही नहीं, क्योंकि x की वैल्यू इससे पीछे है ही नहीं, ठीक है। और लॉग में भी ये क्या करेगा, लॉग में भी ये ग्राफ यहीं से शुरू होगा, इसके आगे ही जाएगा, ये वैल्यू ग्राफ में इसमें भी नहीं होगी, ठीक है। यदि आपको ऐसा कोई डोमेन दे दिया जाए तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ये इससे डिक्रीज होता चला जा रहा है, ये यहां से इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपसे बोला गया ना कि भाई ये इक्वेशन थी, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब आप एल्जेब्रिकली यदि इसको सॉल्व करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। सपोज आप कहोगे कि x इक्वल टू 10 टू द पावर 1 अपॉन x, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसे सॉल्व कर लिया तो रास्ता ब्लॉक हो गया, यहां पे अब आप ब्लॉक हो गए। अब इसके आगे आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, कोई तरीका नहीं दिख रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ यदि पूछता है तो आप ग्राफिकली उसको देख लो, तो भाई ग्राफिकली ये इधर जा रहा है और log x इसके बाद में इंक्रीज हो रहा है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 हो गए इस इक्वेशन की, ठीक है। तो यही बेनिफिट है कि हम ग्राफ्स में, ग्राफ के थ्रू बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक के केस में तो आपने देखा ही था, आप उसकी अलजेब्रा बहुत अच्छे से जानते हो, तो आप उसको अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हो काफी चीजों को। लेकिन यहां पर देखो कितना बेनिफिट हुआ है, यदि आपको वैसे सॉल्व करना हो तो कोई रास्ता नहीं मिलेगा इसको सॉल्व करने का, ठीक है। लेकिन ग्राफिकली यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको बहुत इजीली दिख जाते हैं, यदि आपको सारे ग्राफ माइंड में बिल्कुल सेट हैं, याद हो चुके हैं, तो आपके साथ क्या होगा कि आप ये सॉल्यूशंस विदाउट योर यूजिंग योर पेन आप बता दोगे कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 है, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा यदि ये कंडीशन दी है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, ओके। सो ये सिंपल सी बातें हैं जो हम ग्राफ के थ्रू बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। नाउ कमिंग ऑन अवर नेक्स्ट ग्राफ, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बस इसमें कुछ नहीं होगा कि जो नेगेटिव में दिया हुआ है वो सारी वैल्यूज क्या होंगी, वो पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएंगी, और कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा एक्स स्क्वायर। और थोड़ा सा जो डिक्रीजिंग का इसका स्लोप है, ठीक है, जो डिक्रीजिंग टेंडेंसी है, 1 पे तो देखो 1 ही रहेगा, 1 पे इसको 1 ही मिलना है, ठीक है। लेकिन जो डिक्रीमेंट होगा वो बहुत फास्ट होगा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर होने की वजह से आपने 1/2 रखा तो वो 1/4 पे जाएगा, 1/4 रखा तो 1/16 पे जाएगा, तो क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक। तो यहां पे डिक्रीमेंट बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे हम, ठीक है, ऐसे डिक्रीमेंट दिखाएंगे बिल्कुल, और ये ऊपर उतने ही स्लोप से बढ़ता भी चला जाएगा, ठीक है। तो सेम स्लोप रहेगा, स्लोप में डिफरेंस नहीं आएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। और जो नेगेटिव वाली वैल्यूज थी, अब क्या हुआ, नेगेटिव वाली वैल्यूज अपना इधर वो ले लेंगी, इधर मिरर इमेज बना लेंगी, ठीक है। तो ये हो गया 1 और ये इस तरीके से ये यहां पे भी चला गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया। एक्स में 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में सिर्फ यही डिफरेंस होगा कि ये भाई ये वैल्यूज में क्या आएगा कि इसका स्लोप बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वैल्यूज बहुत तेजी से बदलेंगी। जैसे आपने यदि 1/2 रखा तो 1/2 पे ये वैल्यू कितनी देगा आपको, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विल गिव यू 4, ओके। एंड 1/3 रखा तो 9 देगा, और जैसे ही आपने 1/4 रखा तो ये तुरंत 16 पे चला गया, ठीक है। तो कोई एक ग्राफ की जो स्लोप है वो स्लोप बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, बस यही डिफरेंस है। और इसका एनालिसिस हम कैसे करेंगे ये हम लोग आगे लेक्चर्स में देखेंगे कि भाई जितने क्वेश्चंस हम करेंगे तो क्वेश्चंस करते करते हमें समझ में आएगा कि इसका क्या बेनिफिट हमें मिल रहा है। सो अभी ग्राफ के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है। डोमेन में हम बात करें, सो x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, रियल माइनस 0, ओके। तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, बस रियल नंबर से 0 नहीं होना चाहिए x की वैल्यू। और y की वैल्यू क्या आएगी, y शुड बी ग्रेटर देन 0, कभी 0 के इक्वल तो आएगा नहीं, तो ग्रेटर देन 0 हमेशा मिलेगा आपको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ओके। सो यही डोमेन और रेंज की बात हो गई। रेंज मतलब y की वैल्यूज, x डोमेन मतलब x की वैल्यूज, ओके। देन ओके, दिस लेक्चर इज अप नाउ
And in next lecture we will discuss the transcendental functions like exponential function, logarithmic function, sinusoidal functions, these type of functions. Okay, thank you.